مرزا اسد اللہ خان غالب اردو ادب کے وہ شاعر اور مکتوب نگار ہیں جن پر پوری اردو دنیا ناز کرتی ہے، اور ہم ان کے کلام میں جو خوبیاں پاتے ہیں وہ کلاسیکی طرز کی ہیں۔ ان کلاسیکیت کے میں وہ خوبی موجود ہے کہ آج جدید دور میں بھی ان کی معنویت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے کلام میں جو نفسیاتی مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کے تحت مرزا غالب نے جو مضامین پیش کیے ہیں، ان مضامین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کئی معاملات میں وہ مضامین صادق آتے ہیں۔ مرزا غالب ابتدا میں بہت مشکل لکھا کرتے تھے، اور چونکہ وہ فارسی کے شاعر مرزا عبدالقادر بیدل کی پیروی کیا کرتے تھے، اور اس پیروی کے نتیجے میں مشکل پسندی ان میں در آئی تھی۔ ایک بار ایک مشاعرے میں مرزا غالب کلام پڑھ کر اترے تو ایک دوسرے شاعر وہاں پر کھڑے ہوئے اور غالب پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے کہ کہے اور دوسرا سمجھے، زبان میر سمجھے کلام میرزا سمجھے، مگر تم اپنا کہا آپ سمجھو یا خدا سمجھے۔ مرزا غالب نے بھی اس کا جواب اس طریقے سے دیا، مشکل ہے ز بس کلام میرا ہے دل، سن سن کے اسے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل۔ بہرحال غالب نے جواب تو دے دیا، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات در آئی کہ جب تک میں عوام کی صلاحیتوں کے مطابق نہیں کہوں گا، ان کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہو سکے گی جس کے وہ مستحق تھے۔ مرزا غالب ہمیشہ اس بات کے شاکر رہے کہ ان کو وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جس کے وہ اپنے آپ کو حقدار مانتے تھے۔ وہ خود بھی کہا کرتے تھے، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی کہ میں ایک ایسے باغ کا بلبل ہوں جو ابھی باغ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ واقعی میں سچائی بھی تھی کہ مرزا غالب کو ان کی وفات کے بعد لوگوں نے پہچانا۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کا مرتبہ لوگ ذوق سے بھی کمتر آنکا کرتے تھے۔ مرزا غالب ذوق کے انتقال کے بعد میں بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے، لیکن جو اس زمانے کی شاعری کا ٹرینڈ تھا، محاورہ بندی ہے، اصطلاحات ہیں اور قدامت پسندی ہے، زبان کے چٹخارے ہیں، یہ تمام چیزیں ذوق کے ہاں ہمیں زیادہ ملتی ہیں، جبکہ غالب کے کلام میں ہمیں زبان کا تخلیقی استعمال اور ایک دم نئی اور نادر تشبیہات کا استعمال، زبان کا ایک طریقے سے انہوں نے جو استعمال کیا وہ بڑا حاکمانہ طرز کا تھا۔ کہیں کہیں وہ الفاظ کو اپنے حساب سے گڑھ بھی لیا کرتے تھے اور موڑ توڑ بھی دیا کرتے تھے، اسی لیے کہیں کہیں غالب پر اعتراضات بھی ہوا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے ان کے کلام میں اعتراضات کیے، لیکن غالب کی جو شخصیت تھی وہ بلا کی عظیم شخصیت تھی، اس لیے کسی کی غالب کے سامنے نہ چلی۔ جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے اعتراضات کمزور پڑ گئے، اور آج غالب اسی تم تراق کے ساتھ میں اردو ادب کے اندر اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ مرزا غالب ویسے تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن غزل گوئی، قصیدہ نگاری اور مکتوب نگاری میں جو انہوں نے مقام حاصل کیا وہ بہت کم شاعروں کو نصیب ہوا ہے۔ آج ہم ان کی ایک غزل، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، اس غزل کی بنیاد پر ہم غالب کے کلام کی خوبیوں کو تلاشنے کی کوشش کریں گے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہ تھا کہ ہمارا وصال ہمارے محبوب سے ہوتا، لیکن اگر ہم اور جیتے رہتے تو ہم اسی کا انتظار بھی کرتے رہتے۔ یعنی غالب زندگی بھر اپنے محبوب سے وصال کے لیے
तड़पते रहे, तरसते रहे, उनको विसाल नसीब नहीं हुआ और मौत आ गई। गालिब कहते हैं अगर मौत ना आई होती और हमें ज़िंदगी और मिलती तो हम उसके लिए हमारी ज़िंदगी में यही होता कि हम और उसका इंतज़ार करते रहते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में महबूब का इंतज़ार ही लिखा था। विसाल नसीब हमारी किस्मत में न था, हमें विसाल नहीं होना था। इसी तरीक़े से गालिब के कलाम में जो नयापन है, यानी मौज़ूआत भले ही पुराने हों लेकिन जिस तरीक़े से वो कहा करते थे किसी बात को, वो उनकी जो इनफरादियत है वही उनको दूसरे शायरों से मुख्तलिफ़ और उनसे ज़्यादा बासलाहियत बनाकर पेश करती है। इस गज़ल का दूसरा शेर है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अब यहाँ पर गालिब का तसव्वुर महबूब हमें जहन में रखना होगा। गालिब अपने महबूब के बारे में ये मानता है कि वो कोई सच्चा वादा नहीं करेगा। अगर वो सच्चा वादा करता और उसका यकीन गालिब को होता तो गालिब ये कहते कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि हम तेरे वादे पर जिए हों तो ये बात तू ये समझना कि हमने झूठ जाना। अगर हमें इस बात का पहले ही यकीन होता तो हम खुशी से पहले ही मर गए होते, आज हम ज़िंदा ना होते। तो हमें भी ये मालूम था कि तू जो वादा कर रहा है वो झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बावजूद हमने तेरे वादे को सही मानने का एक तरीक़े से ड्रामा किया और हमें पहले ही भी ये यकीन था कि तू हमसे जो है वादे को वफ़ा ना करेगा, इस वजह से हम जीते रहे, वरना हम कभी के मर गए होते। अगला शेर है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तीर जब जिगर के पार चला जाए तो वो खलिश, वो चुभन जो गालिब यहाँ पर पेश करना चाह रहे हैं वो नहीं होती। गालिब के कलाम की जो एक बुनियादी खूबी ये है कि हम उनके कलाम में पेश किए हुए मौज़ूआत को महसूस भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें उनके इस शेर में मिलेगी। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, किसी को जो आधा खींचा हुआ तीर है उसकी को उसके अंदर जो खलिश है, जो दुखन, जो चुभन है, उसकी जो कैफियत है, उसका जो लुत्फ़ है, उसका जो इंबसात है, उसकी जो हमें खुशी है, वो कोई मेरे ही दिल से पूछे, क्योंकि इसको कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये अगर जिगर के पार हो गया होता तो जो खलिश हमें अभी मौजूद है हमारे दिल में, जो चुभन अभी हमें मौजूद है, वो चुभन नहीं होती। अब यहाँ पर खलिश भी गालिब ने एक तरीक़े से वसी मानों में इस्तेमाल की है कि अगर ये आर पार हो गया होता तो हमारे दिल की वो खलिश कि उसमें चुभन बाकी रहे वो हमारे दिल में कभी ना होती। और जो तूने तीर नीम कश छोड़ा है, दिल में आधा घुसा हुआ और आधा निकला हुआ जो तीर है, उसकी जो तड़प है वो बड़ा ही लुत्फ़ देने वाली, बड़ी ही कैफियत पहुँचाने वाली यहाँ पर जो हालत हुई है उस हालत को गालिब हमें महसूस कराना चाहते हैं। अगला शेर में गालिब कहते हैं, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। यहाँ पर एक बहुत सीधा सादा सा शेर और एक आम जो आशिक की नफ्सियात होती है कि उसके दोस्त उसके साथ में हमदर्दी करें, उसके महबूब से मिलने में उसके मददगार मुआविन साबित हों, ये तमाम चीज़ें गालिब भी चाहते थे। तो यहाँ पर अपने गालिब अपने ही दोस्तों से ये कहते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कि हमारे ही दोस्त हमें नसीहतें करने लगे, ये कैसी दोस्ती है। हाँ, बल्कि हम तो ये चाहते थे कि हमारे दोस्तों में से कोई हमारा चारा साज होता, यानी इश्क़ का इलाज करने वाला होता, कोई गम गुसार होता, इश्क़ में जो गम हमको नसीब हुआ है उस गम को दूर करने वाला कोई होता। ये नहीं कि कोई हमें ये समझाने लगे कि भाई इश्क़ न कर, इश्क़ करने से ये ख्वारी होगी, ये परेशानी होगी, ये मुसीबत तुझ पर आएगी। ये तमाम चीज़ें हमें अपने दोस्तों से इसकी उम्मीद न थी। ये काम तो नासे का है, नासे को ही कर लेने दीजिए। दोस्तों को
तो गम गुसारी और चारा साजी ही करना चाहिए, इसकी गालिब तमन्ना ज़ाहिर करते हैं। अगले शेर में गालिब कहते हैं कि गम अगरचे जहाँ गुसिल है पे कहाँ बच्चे के दिल है, गम इश्क गर न होता गम रोज़गार होता। यहाँ गालिब का फ़लसफ़ा गम हमारे सामने आ जाता है। गालिब एक ऐसे शायर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि गालिब ने उर्दू शायरी को जहन दिया। इससे पहले गालिब की शायरी से पहले हमें जो कलाम देखने को मिलता है, कोई भी शायर हो, उनका बेशतर हिस्सा दिल को अपील करने वाला हुआ करता था। गालिब पहले शायर हैं जिनका कलाम दिल के साथ साथ दिमाग को भी अपील करता है और उनके शेरों में एक फ़लसफ़ियाना रंग, एक मुफ़क्किराना अंदाज़ हमें देखने को मिलेगा। गालिब इसमें फ़लसफ़ा गम अपना बयान करते हैं कि गम अगरचे जहाँ गुसिल है कि कहाँ बच्चे के दिल है। हम ये जानते हैं कि गम जो है जहाँ को पिघला देने वाला है, रूह को बिल्कुल पिघला देता है, उसको मुज़महिल कर देता है, लेकिन इससे बचने का कोई चारा भी नहीं है क्योंकि इंसान के दिल लगा हुआ है और दिल का ताल्लुक़ जो है ख्वाहिशात से होता है। ख्वाहिशात जब बढ़ती हैं, पूरी नहीं होती तो गम होता है। तो इसलिए जब तक इंसान के दिल है तो गम भी लगा रहेगा। गम इश्क गर न होता गम रोज़गार होता। अगर किसी इंसान को इश्क का गम नहीं है तो ये यकीन मानिए कि उसको ज़माने का गम होगा, रोज़गार का गम ज़रूर सताएगा। तो एक ना एक गम उसके ज़िंदगी में रहना ज़रूरी है। इसलिए गम और ज़िंदगी लाजिम और मलजूम है। ये बात गालिब ने वो दूसरे अशार में भी कही है कि जब तक हम जीते रहेंगे, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। यानी जब तक हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ में गम तो लगे ही रहेंगे। गमों का निपटारा, गमों से निजात तभी नसीब होगी जब हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। ये उनके फ़लसफ़े गम का हिस्सा था। इस शेर में गालिब ने अपना फ़लसफ़ा गम बयान किया है। अगले शेर में गालिब कहते हैं, हुए हम जो मर के रुसवा हुए क्यों न गर्क़ दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। गालिब का अंदाज़ बिल्कुल आज़ादाना है। वो कबीर दास जी से उनका मिलता जुलता अंदाज़ है। वो न हिंदू के अक़ीदे पर अमल पेरा हैं, न मुसलमानों की रिवायात पर कमर बस्ता हैं। तो गालिब अपने आप को बिल्कुल आज़ाद रखते हैं। एक रिंद मशरब किस्म का इंसान अपने आप को बयान करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ना मुझे हिंदू का एहसान चाहिए, ना मुझे मुसलमान का एहसान चाहिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि हुए हम जो मर के रुसवा, हम मरने के बाद में रुसवा हो गए, बदनाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ज़िंदगी में कोई अमल अच्छा किया ही नहीं था। मरने के बाद में लोगों ने जनाज़ा उठाया तो लोगों ने हमारी बुराइयों को भी याद किया। कुछ ने अच्छाइयाँ याद की तो ज़्यादातर लोगों ने बुराइयाँ भी याद की कि गालिब शराब पीते थे, डोमनी के पास जाया करते थे, जुआ खेला करते थे, वगैरह वगैरह। जो उनके ऐब थे, गालिब ने कभी उनको छुपाया भी नहीं। उन्होंने अपने खुतूत में उनको बड़ी बेबाकी के साथ में पेश किया है। तो गालिब ये कहते हैं कि हुए हम जो मर के रुसवा, हम तो मर के रुसवा हो गए क्योंकि उसकी वजह से ये हुआ कि हमारा जनाज़ा भी उठा और हमारा मज़ार भी बनाया गया। तो आज भी गालिब का मज़ार निज़ामुद्दीन के अहाते में मौजूद है। लोग जाते हैं, देखते हैं और गालिब की यादों को ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हमारा जनाज़ा न उठता और हमारा मज़ार न बनता तो हम रुसवा ना होते। हम रुसवा क्यों हुए? क्योंकि हम मरने के बाद में हमारा जनाज़ा भी उठा और हमारा मज़ार भी बना, हमारी निशानी कायम हो गई। अगर हमारी निशानी कायम नहीं हुई होती तो हम लोगों की याददाश्त से महव हो जाते और लोग हमें कुछ दिनों बाद में भूल जाते। लेकिन हमारी बदनामी का दाग जब तक मज़ार है तब तक दुनिया में मौजूद रहेगा। यहाँ गालिब का एक वो अंदाज़ कि किसी भी बात को वो कहते थे तो उसके अंदर एक अनोखापन हुआ करता था। गालिब यहाँ भी एक तरीक़े से मेरी नज़र में जो बात मैं महसूस करता हूँ वो ये लगता है कि गालिब ने यहाँ भी शायराना ताल्ली से काम लिया है। गालिब भी जानते हैं कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनका मज़ार भी बनेगा और जनाज़ा उठेगा तो लाखों लोग उसमें शामिल भी होंगे और उनको याद करेंगे और रहती दुनिया तक उनको याद किया जाता रहेगा। और ये
कोई उनका झूठा अंदाज़ भी नहीं था, जिस पर उनको यकीन था, और वो यकीन आज भी उनका पूरा हो रहा। पूरी दुनिया गालिब को जानती है। उर्दू अदब के लिए वो एक मोतबर शायर हैं, उर्दू अदब को सर बुलंद करने वाले शायर हैं, और जब कभी भी उर्दू शायरी का ज़िक्र होता है तो गालिब का नाम उसमें ज़रूर शामिल होता है। अगले शेर में जो मक्ता है, गालिब ये कहते हैं, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। गालिब हालांकि शराब भी पिया करते थे, जुआ भी खेला करते थे, गाना गाने वाली के पास भी जाया करते थे। बहुत से उयूब जो उस ज़माने के रईसों में हुआ करते थे, जागीरदारों में हुआ करते थे, वो गालिब में भी मौजूद थे। तो लेकिन गालिब की एक खूबी ये थी कि वो इन तमाम रिंदाना आमाल को प्रैक्टिकली जीते हुए भी तसव्वुफ़ के मामले में जब किसी वारदात को वो पेश करते हैं तो वो इस सलीक़े से पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत जहां दीदा, कोई बहुत पहुंचा हुआ वली उस मसले को बयान कर रहा है। तो तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ जो शुअरा हैं उनमें दर्द का नाम आता है, असग़र गोंडवी का नाम आता है, और भी बहुत सारे शायर हैं। लेकिन गालिब को वहाँ पर भी हम फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि गालिब ने तसव्वुफ़ के मसाइल को जिस अंदाज़ में पेश किया है और उसमें जो उनका अपना उसलूब नज़र आता है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और, तो गालिब ने तसव्वुफ़ को भी अंदाज़ बयां और की अंदाज़ में पेश किया है। उनका तसव्वुफ़ उनकी अमली ज़िंदगी से मेल नहीं खाता, लेकिन जिस तरीक़े से उन्होंने मसाइल को पेश किया है वो गालिब ये कहते हैं कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तूने तसव्वुफ़ के मसाइल जिस अंदाज़ में पेश किए हैं और जिस अंदाज़ में तूने, जिस उसलूब में तूने, जिस अंदाज़ बयान में तूने तसव्वुफ़ के मसाइल को दुनिया के सामने रखा है, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। वो एक वली ही रख सकता था उन मसाइल की पेशकश इतने खूबसूरत अंदाज़ में, एक वली की ज़बानी ही हो सकती थी। तो गालिब एक तरीक़े से अपने आप को तसव्वुफ़ के मामले में वली सिफ़त भी बयान कर रहे हैं। जब हम उनके शायरी में तसव्वुफ़ की गहराई को देखते हैं तो हमें वाकई में ऐसा नज़र आता है कि गालिब तसव्वुफ़ में डूबा हुआ शायर था। अगर हम उनकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दें और किसी के सामने उनका जो नज़रियाती सिलसिला है या जो उनका अमली पहलू है वो अगर किसी के सामने नहीं है और सिर्फ़ वो उनके तसव्वुफ़ के मज़ामीन को देखे तो उसको तसव्वुफ़ की बेहतरीन अक्कासी गालिब के अशार में नज़र आएगी, और वो ये मानने को तैयार ना होगा कि गालिब कोई वली सिफ़त इंसान नहीं थे। वली का जो बुनियादी मानी होता है कि खुदा रसीदा, और एक तरीक़े से किसी भी चीज़ की गहराई में पहुंचा हुआ शख्स वली कहलाने का मुस्तहिक़ है। गालिब एक माने में तसव्वुफ़ की गहराइयों में, तसव्वुफ़ के जो गहरे समंदर थे उसके वो बेहतरीन शनावर थे। इसलिए उन्होंने तसव्वुफ़ के मज़ामीन को इस अंदाज़ में पेश किया है कि जैसे कोई वली अपनी अमली वारदात को अपनी ज़बानी, अपने मलफूज़ात में, अपने मकतूब में या अपनी रुश्द व हिदायत में पेश करते हैं, इसी तरीक़े से गालिब ने अपने कलाम में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत को पेश किया है। तो हम जहाँ तक गालिब के मौज़ूआत को देखेंगे तो हर मौज़ू में गालिब का एक अपना अंदाज़ बयान नज़र आएगा, और यही गालिब की सबसे बड़ी खूबी है कि दूसरे शायर जिस अंदाज़ में बात को कहा करते थे वो घिसा पिटा हुआ करता था, लेकिन गालिब के कहने का अंदाज़ बिल्कुल अनोखा और शगुफ्ता हुआ करता था। आज भी जब हम उनकी शायरी को पढ़ते हैं तो गालिब की शायरी तरोताज़ा नज़र आती है, और ऐसा लगता है कि गालिब की शायरी माजी की शायरी ही नहीं थी, हाल की शायरी ही नहीं है, बल्कि वो मुस्तक़बिल की शायरी भी रहेगी।